The name of the project is Kanalgaon Farmhouse. We named it after the area, which is the Kanalgaon area itself. The story goes back before COVID, wherein there was the need of a clubhouse. The client was searching for architects other than in Nagpur. And when we came to know, since we know the clients since our childhood, so we urged them to take options from us also, and we somehow we competed. We wanted to compete for the project, and we worked hard and really got that project. That is just before the COVID, and the client really liked the clubhouse. And when the COVID came, the clients started realizing that they need a space for more luxury residential place. There was a bungalow over there, but it was very dilapidated, so that nobody could stay there. So we proposed the whole master plan, so that the bungalow, the clubhouse, and the swimming pool, they are placed such way that is, it is designed in a way that is not done in different phases. The clubhouse is positioned in the other, and the other two sides are hidden by landscape and civil features. We started basically while conceptualizing the master plan. So the clubhouse, when it was conceived, the basic planning was to have an home theater and other entertainment, billiards and a dance area in the lower level, and a bar area and a cards area on the upper level. And the whole idea behind the structure was to have a clear view of the screen from each and every corner of the house. So it was a split level planning, and because it was a split level planning, it was a double, triple height structure. The covering of the roof was a major challenge we were facing, because if we would have gone for RCC, then the beams and all would have really made the structure very, very heavy aesthetically. So ultimately, we designed a very, very curved, very long curved truss, as you can see in the image. And it was lifted through cranes. It was made on the whole ground, almost it must be around 100 feet long. And then we decided, and the major role which I wanted in the whole, both the structures, as far as the clubhouse and the bungalow, was to make, how can I depict wind. The basic structure shape was then decided to go with a curved roof, so that I can depict how a wind looks. But since the bungalow had much more levels in it, and due to the time restrictions and other leakages and other things, because monkey menace was, monkeys का बहुत बड़ा वहाँ पे तांडव था, तो हमारा जो क्लब हाउस का जो रूफ था वो बंदरों ने कूद के उसमें छेद कर दिए थे, तो वहाँ पे लीकेजेस के बहुत इश्यूज आए थे. So this time the client said, let's go with simple roof, RCC roof, so that we don't face any more problems such like that. Then again the challenge came, how do I show wind? Then I planted lot many trees on the terrace of the bungalow, so that when the wind moves, the tree moves, and that's how I try to depict it. The How do I show wind? So, and the as far as the planning challenges is concerned, we this area, particularly the 3.5 acre plot, is almost the lowest area of the entire, I would say, 2-3 kilometer dia. So during the rains, this area was what is always, now also it gets flooded around 2-3 feet. It gets flooded. So we wanted the whole, we raise the plinth level to a certain extent, so that we don't face any water logging inside the house. Earlier जो पहले स्ट्रक्चर था वहां पे, वो पूरा सबमर्ज हो जाता था. ऑलरेडी जो बंगलो था वहां पे, जो तोड़ के हमने नया बंगलो बनाया. तो ये हमने दोनों स्ट्रक्चर को उस तरीके से प्लान किया कि भी हम उसकी हाइट इतनी कर दें कि भी फ्लडिंग से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए. क्योंकि फ्लडिंग होती थी, तो लैंडस्केप भी इतने अच्छे से फ्लरिश नहीं हो पाता था, क्योंकि और जितने भी सांप
जो रेप्टाइल्स जितने भी रहते थे तो वो फ्लडिंग के साथ साथ में, क्योंकि लोएस्ट लाइंग एरिया था, तो सांप भी बहते हुए पूरे फार्म हाउस पे आते थे। सो फिर हमने फ्लडिंग का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि स्ट्रक्चर को ऊपर कर दिया तो एक स्ट्रक्चर सेफ है। सेकेंड, देन वी फिल्ड and 50 to 40% of the area we filled it, and the rest we left it the lowest area, the parking area and the roads and all, we left it at the same level which was there. We treated it that way, and we created a boundary wall in such a way that no water should enter from outside vicinity. जो बारिश का पानी है वो आ रहा है वो ठीक है, वो उतना नहीं आता, लेकिन मेजर पानी आता था आजू बाजू से, पूरे दूसरे खेतों से पानी अंदर आता था, वो हमने पूरा ब्लॉक किया एंड चैनलाइज करके उसको, जो नेचुरल रेन वाटर है, तो वहां से अभी भी फ्लडिंग स्ट्रक्चर के बाहर होता है, अब अंदर नहीं होता है। सो दिस वाज द चैलेंज वी फेस्ड, एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द थिंकिंग प्रोसेस, एंड स्ट्रक्चर जो बाद में धीरे धीरे निखर के आया है, यू कैन, दैट वाज द हाईलाइट। बंगलो में भी चैलेंजेस ऐसे थे बिकॉज क्योंकि पुराना वहाँ पे बंगलो था, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ट्रीज हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 5-7 years हमने प्लांट भी किए थे। अब जो नया बंगलो बनाए थे फिर वो उसका एरिया करीब करीब 9,000-10,000 स्क्वायर फीट का है, तो कुछ पेड़ बंगलो के बीच में आ गए, कुछ पेड़ मेरा क्लियर इंटेंशन था कि भैया we don't wanted to disturb any tree, whether it is a 5 feet tall or a 10 feet tall or a 15 feet tall. There was a palash tree which we got the total station surveyed, and I don't know what happened, क्या हुआ, वो सर्वे तो किया, उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग किया हमने पूरा, एंड व्हेन वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, वो एक्चुअल ट्री जो था वो अपने सर्वे ड्राइंग से 10 फीट दूर आ गया, एंड वो सिर्फ ट्री को बचाने के लिए पूरा हमको वहाँ का उतने पोर्शन का रीप्लानिंग करके रफली अराउंड 700-800 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट वी हैड टू इंक्रीज द एरिया विच क्लाइंट रेडिली अग्रीड। प्लस जो इंटरनल कोर्टयार्ड जो प्लान किया था उसमें जो चैलेंज था कि भैया वो कोर्टयार्ड में लैंडस्केप कैसे फ्लरिश हो, एंड उस टाइम पे हमने पर्टिकुलर डेट्स का, हर मंथ की 22 को 3 बजे कितनी सनलाइट वो कोर्टयार्ड में पहुंचेगी, तो वो पूरा हमने हर मंथ का 12 रेंडर्स ऐसे किए, वो उसका पूरा ब्लॉक रेंडर्स, एंड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम area which is under sunlight, we had planted trees over there, flowers, I mean flowering or whatever, and so that जस्ट नॉट एस्थेटिकली हमने प्लान नहीं किया है, साइंटिफिकली भी हमने सनलाइट को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उसको डिजाइन किया हुआ है, and the rest of the area where the sunlight was not there, so we planned a sitting area. Design inspiration, I would say, when I was a student of architecture, I was very much inspired by the courtyards. I had been to Jaisalmer and many other places, Gujarat also. Courtyards were really the essence of the whole house. So I really wanted to incorporate a courtyard into this bungalow, and just not the fancy of giving a courtyard. मुझे सिर्फ fancy के लिए नहीं देना था, it has to have a purpose basically, कि भी वहाँ पे जाके अपन बैठे, वहाँ एंजॉय करें लैंडस्केप को। मीन्स अगर आप देखेंगे कोर्टयार्ड में, अगर आप बैठ रहे हैं, यू कैन सी द होल हाउस सिटिंग इन द कोर्टयार्ड, इवन द गार्डन जो पूरा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द, आपको पूरा 2-3 एकड़ का जितना भी गार्डन एरिया है वो पूरा आपको एक ही जगह बैठे बैठे पूरा दिखता है। उसका मैं बहुत बड़ा बेनिफिट दूंगा गौरव को भी। उन्होंने जो हमको विंडोज के सोल्यूशन दिए पूरा 100% ओपनिंग स्लाइडिंग का, एंड सिर्फ कोर्टयार्ड नहीं था, बिकॉज आई वांटेड द विंड टू फ्लो इनटू द हाउस and get escaped from the courtyard. So once you are into the courtyard, you don't feel as if inside the house, but experiencing the outside. पहले तो सबसे पहले तो जो एंट्री थी पूरे प्लॉट की वो एकदम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में थी, एंड वी वांटेड टू हैव, पहले वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू था, तो वी वांटेड टू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पार्किंग इनसाइड द प्रीमाइसेस इटसेल्फ, कम से कम 30-40 गाड़ी अंदर ही आ सके, बिकॉज जो क्लाइंट है वो उनके गैदरिंग्स काफ़ी होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो उनका क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि भैया मुझे पार्किंग प्रॉपर चाहिए,
तो पूरा पार्किंग एंड द ड्राइववे वाज प्लान्ड इन सच अ वे कि भी वो दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस इन कमिंग इनसाइड द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। तो पूरा हमने एंट्री चेंज की, ड्राइववे चेंज किया पूरा, एंड एंड प्रॉपर मैन्यूवरिंग स्पेस दिया है, एक कल्डी सैक बनाया है एट द एंड, सो दैट द उतर के गाड़ी वापस पार्किंग में इजी है, तो देर यानी किसी को रिवर्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े। कमिंग टू द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, पहले क्लब हाउस जब प्लान किया था तो उसी दौरान हमने जब स्विमिंग पूल में कुछ प्लांट्स कोकोनट ट्रीज के इस तरीके से प्लान किए थे कि ये फ्यूचर में जाके वो दैट इटसेल्फ फॉर्म्स एन अरीना, एंड उसका नेचुरल शेड मिले स्विमिंग पूल को यूज करने के लिए, एंड प्रिवेसी भी मिले, दोनों चीज आगे पीछे फ्यूचर में अगर 5 years 10 years 15 years डाउन द लाइन अगर आजू बाजू कुछ स्ट्रक्चर्स आते भी हैं तो उसको प्रिवेसी भी मिले। तो अभी अगर आप देखेंगे विजुअल्स में तो पुराने फोटोज में ट्रीज कुछ 5 फीट 10 फीट टॉल है, और अभी ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद वो काफी इतने ऊंचे हो गए कि भैया उसमें से अच्छा खासा शेड भी मिल रहा है स्विमिंग पूल में। एंड जो पुराने जो ट्रीज थे बंगलो की तरफ में, उसको हमने बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए प्रिजर्व किया है। एंड इंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्टर को ये थे कि एक पेड़ भी अगर हमारा डैमेज होता है तो इट वुड बी अ वेरी हैवी पेनल्टी टू यू। तो उसको उसे भी ये था कि भी मुझे एक भी पेड़ को कुछ भी टच नहीं करना है, तो उसने भी अच्छे से प्रिकॉशन लेते हुए, एंड इफ यू सी देयर वाज वन ट्री व्हिच वाज कमिंग बिलो द स्लैब, सो वो एक मेरा बहुत फैसिनेट ट्री था कि वो स्लैब वाज समवेयर अराउंड 20-25 फीट हाइट पे स्लैब था वो, एंड मुझे कहा कि ये पेड़ आज तो 10 फीट का है, फ्यूचर में जाके तो इसने बढ़ना है, तो वो मैंने वहीं पे एक सर्कुलर ओपनिंग स्लैब में प्लान की थी। आई एम रियली थैंकफुल टू द क्लाइंट्स मिस्टर सुंदर अग्रवाल ऑन ट्रस्टिंग अस एंड ट्रस्टिंग आवर प्रोसेस बेसिकली। मानिए ना मानिए, नागपुर में लोग आर्किटेक्ट्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, बाहर के आर्किटेक्ट्स पे ट्रस्ट कर लेंगे लेकिन नागपुर के आर्किटेक्ट में, बट सुंदर सर इज somebody who have always inspired me to think differently, and I hope I have always lived up to his expectations. We've been knowing Sumit for a long, long time, and we've been one of the prominent suppliers for teak. He has been using different forms of teak. It can be plantation or hardwoods or even imported Burmese teak. But this time, while he started the project, he was very, very sure he wanted to use the Balarsa teak, which has a good grain texture, darker grains, and it was like sometimes you have to be very, very sure what is he looking for. But he was very clear in his idea, and initially in the past we have given him Burmese teak, I think, but this time it was no way around. He wanted to use only Balarsa teak, so even we were not confident. But since on the staircase, on the walls, the doors, even the ceilings, he asked us to make specifically 1 mm thicker veneer, which he pressed on a boilo and he used it on the ceiling. These all aspects turned out very, very good. To our surprise, when we saw the project got completed, it was looking out of the world, mesmerizing. The teak and the textures which turned out, the grains has come out really very good, and he has used it to perfection. I should say this is one of the projects we also feel like we can show the teak has been used and it can be used this way. It is looking very, very beautiful. Thanks to him to getting the products in the right way and using it in the best way possible. Thank you. सुमित भैया और उनके फर्म के साथ मैं बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा मतलब जो सबसे बड़ा हैसल था, वो सबसे बड़ा हैसल था कि जो सबसे बड़ी विंडो, एक 30 फीट की विंडो बनाई हम लोग ने, और वो भैया बोल रहे थे कि 30 फीट की विंडो मुझे पूरी ओपनिंग चाहिए। मैं बोला भैया कैसे करेंगे, वो तो दीवार पे जाके खड़ी हो जाती है। नहीं, नहीं मुझे करना है। तो एक्चुअली वो स्पैन तो बहुत बड़ा था, वो स्पैन अराउंड 45-50 फीट था। बट तो फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ कि हम इसको 30 फीट में डिवाइड करेंगे, और फिर 30 फीट को और थोड़ा कम करते करते 27 फीट पे आके वो क्लोज हुआ। तो 27 फीट पे जब वो क्लोज हुआ तो कॉर्नर में हमको स्पेस मिली। तो मैंने बोला भैया अगर हम इसको अंदर से या बाहर से फिट करें तो हमको ये पूरे पैनल स्लाइड करके दूसरी तरफ चले जाएंगे।
तो भैया वो से कि हाँ ये कर सकते, तो उसके पीछे बहुत सारी बैकवर्किंग हुई, क्योंकि सेक्शंस क्या होंगे, कैसे लगेंगे, क्या रहेगा, वो सारा कुछ डिस्कशंस हुआ, वो हमने किया। जब वो किया तो उसमें एक और हर्डल आ रहा था। जो हर्डल था कि क्या होता है, हमारे सेक्शंस एक यूनिफॉर्म सेक्शंस होते हैं। तो 4 पैनल के सेक्शंस में क्या हुआ कि सेंटर पैनल वाज़ अराउंड 160 mm का। तो 160 का सेक्शन था, तो भैया बोले मेरे को ये नहीं चलेगा। देन आई सर्च इन द मार्केट, मैंने बहुत लगा, डिस्कशन किया, बातचीत की, सब कुछ हुआ। तो एक जगह मैंने ये सेक्शन डेवलप कराया और उसको रिड्यूस करके मैंने 60 में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो 27 फीट की ओपनिंग थी पूरी, उसमें हमारे मिनिमल 30 के सेक्शंस बीच में आ रहे थे, जिसके कारण फुल व्यू मिल रहा था गार्डन का, और सामने फ्रंट व्यू जो है वो सब कुछ मिल रहा था। तो वो करके हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया। वहाँ पे जो लैंडस्केप एरिया है, हमने स्पेसिफिकली लैंडस्केप एरिया को एयर कूलिंग प्रोवाइड किया है, सो दैट कि वो इन समर्स में फ्लरिश कर सके और सस्टेन कर सके बेसिकली। बट हमने उसे ईयर राउंड, आज 2 साल हो रहा है, उसे देखा है कि बहुत अच्छे से वो सस्टेन कर रहा है और बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। एंड रिगार्डिंग सुमित सर, मैं उनके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर ने हमें हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया क्रिएटिव या कुछ इनोवेटिव करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। और यूँ ही नहीं कि सिर्फ़ कर लो, उसमें सर का पूरा इनपुट रहता है, टेक्निकली इनपुट रहता है, और हमने जितने भी चीज़ें नए ट्राई किया है, वो हर जगह हम सक्सेसफुल वहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अपन दाने का काम पहली बार किए, उसमें लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। उसमें ब्रास पट्टी भी यूज़ हुआ, आया पॉलिश में अच्छा लगा देखने में। उसके बाद बाथरूम में जो दाने का काम हुआ वो भी अच्छा हुआ, राउंड हुआ बराबर। मैंने वो कनाल गाँव में काम किया ना, वो लकड़ी का जो भी वो अच्छा हुआ, और जो फर्नीचर का काम तो बहुत ही अच्छा हुआ। जो दरवाजे थे एक से बढ़कर एक है वहाँ पे, और सीढ़ी का काम भी अच्छा हुआ है, और सीलिंग का भी काम अच्छा है। कनालगांव फार्म हाउस में इलेक्ट्रिक का काम जो भी किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। सर मैम के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा और उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। कनाल गांव में प्लम्बर का काम हमने किया, उसमें बाथरूम में कुछ अपने को थोड़ी बहुत दिक्कत गई, जिसमें येलो पत्थर लगा हुआ है सिस्टन का प्लेट और कमोड लगाने में, क्योंकि पत्थर वो थोड़ा अंदर बाहर था। उस पर अपन के जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। So I would like to thank the entire team which is associated with this project. The timber person, sanitary wares, windows, our contractor teams, plumber, electrician, tile fitter, especially the stone fitter, and of course, not least our entire office team, which has really supported us for this project. There's one interesting fact about this whole project is, so the last 43 days, Sumit was entirely missing from the office. He was so committed to this project because there was a time deadline. We wanted to, hand over the project on a dedicated time. So we really missed him in the office. And as a wife, I'm happy at least he used to come home. So that's हैंडओवर वॉज ओवरवेलमिंग। ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइम पे बने थे। क्लब हाउस 2018 में बना, बंगलो अभी रिसेंटली 2023 में बना। एंड जब क्लब हाउस बना, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भैया ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि किसी ने ऐसा डायनेमिक कर्व्ड रूफ देखा ही नहीं कहीं। किताबों में भी लोगों ने देखा होगा तो वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स या इंटीरियर स्टूडेंट्स ने देखा होगा, या जिसको थोड़ा बहुत शौक होगा बिल्डर को, उसी ने देखा होगा। बट ये जो क्लाइंट्स हैं ये प्योरली अपने बिजनेस फैमिलीज वाले हैं, तो किसी को ऐसा इल्म ही भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है। एंड आई वाज रियली अप्रिशिएटेड अ लॉट। इवन पीपल फ्रॉम बॉम्बे, जो उनके रिलेटिव्स थे क्लाइंट्स के, दिल्ली, एनीवेयर, एवरीवेयर, दे इवन इफ आज भी आते हैं तो वो पर्टिकुलर उस स्ट्रक्चर को देख के इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एंड इवन इन द बंगलो में तो हैंडओवर
एज सच हैंडओवर नहीं हुआ था बंगलो का. इट वाज जस्ट अ कैजुअल वॉक इन, वैसा सॉफ्ट हैंडओवर जैसा बोल सकते हैं. बट क्योंकि इनकी गैदरिंग्स, इनके गेस्ट्स आते रहते हैं क्लाइंट के, तो इतना ज़्यादा मुझे एप्रिसिएशन मिला है इस पर्टिकुलर बंगलो के लिए. एक तो एप्रिसिएशन, एक क्लाइंट के फ्रेंड यूएस से आए थे आज से कुछ साल भर पहले. तो उन्होंने रात को मेरे को 12:30 बजे फ़ोन करके बोला, सुमित अगर मैंने यूएस में कोई बंगलो बनाया तो यू आर गोइंग टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ दैट हाउस. तो दैट वाज ठीक है, किसी ने बोल दिया, लेकिन इतना बोलना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भैया किसी ने इतना अप्रिशिएट किया है कि पूछिए मत. एंड genuinely people have really appreciated it to a very great extent. Design dialogue, I would say focus. Focus is just not a word, it is FOCUS. So F stands for fire. You should have that fire in you. You should have that urge of creating something new always. सिर्फ कहीं देख लिया उसको कॉपी करना है, नहीं, अंदर से कुछ नया करने की एक ज़ील होना चाहिए अंदर में. देन whatever you do, you should, whether it is good, bad, अच्छा है, बुरा है, उसकी ओनरशिप भी लेना सीखो. खराब हुआ है कोई दिक्कत नहीं, विल इम्प्रूव इट, बट ओनरशिप लेना जरूर सीखना चाहिए. सी, क्रिएटिवनेस. अगेन, कुछ भी चीज़ में कुछ क्रिएटिव करोगे तो ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. रेगुलर काम करते जाओगे तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. एवरी स्ट्रक्चर शुड हैव दैट यूटिलिटी. यू स्टैंड्स फॉर द यूटिलिटी. आई मीन, अगर आपने कोई भी चीज बना दी, उसका कोई पर्पस ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है. तो वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाना है. फर्स्ट ईयर में आर्किटेक्चर में लाइन बनाना सिखाते थे कि भी ऐसी लाइन बनाओ, ऐसी बनाओ. Now you should realize every line has some or the other message. That utility has to be proven. कि भी नहीं, आपका structure utility point of view, whether it is luxury is a utility, whether कोई भी चीज़ हो, utility होना चाहिए. And S, definitely, ultimately you have to be satisfied. अगर आपने कोई structure बना दिया लेकिन आप खुद ही satisfied नहीं हो, तो ऐसा काम ही ना करो कि जिसमें आपका satisfaction ही ना हो. That is my design dialogue. Be focused. सुमित को हम बचपन से ही जानते थे. हमने एक रॉ फार्म हाउस लिया, कन्हाल गांव, एक गांव का नाम है वहाँ पे फिर हमने उसको डेवलप करने के लिए सोचा. काफ़ी आर्किटेक्ट लोगों से हमने अप्रोच की, उसमें बॉम्बे की भी कुछ टीम थी, लेकिन सबके डिज़ाइन लेने के बाद हमको डिज़ाइन सुमित की बहुत अच्छी पसंद आई. उनके कॉन्सेप्ट सब पसंद आए, तो हमने सुमित को फाइनल किया. फिर हमने सबसे पहले वहाँ बनाया क्लब हाउस, जो कि सुमित ने एकदम डिफरेंट डिज़ाइन किया. हमने बहुत जल्दी उसको साल भर में कंप्लीट किया. पूरी फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया. वो क्लब हाउस को हमने करीब 5 साल एंजॉय किया. 5 साल बाद फिर सबकी रिक्वायरमेंट लगी कि यहाँ पे अपन ने एक बंगलो बनाना चाहिए. फिर हमने 5 साल बाद प्लानिंग करके अगेन सुमित से डिस्कशन किया. फिर हमने एक बंगलो की प्लानिंग की. हमने करीब 10,000 फुट में नया बंगलो की प्लानिंग करके बनाए. जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट सिविल और इंटीरियर के साथ 15 महीने में कंप्लीट किया, वो प्रोजेक्ट को भी, वो बंगलो को भी हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब ने इतना अप्रिशिएट किया कि जो आके रहता है वो बोलता है कि आप स्वर्ग में रह रहे हो. ऐसा बंगला तो हमने कहीं देखा ही नहीं. तो हमारे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा रहा. सुमित ने बहुत अपने एफर्ट्स डाले, बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे से सब किया. सुमित के साथ अनुराधा ने भी काफ़ी टाइम हमारे को साथ में दिया. ये इस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बना. Hi, this is architect Sumit Jhawar, and this is my design story. Hi, I'm interior designer Anuradha Jhawar. This is my design story.